अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक न्याजी, मेरे साथ मौजूद हैं रिजवाना। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। और मैं आज मौजूद हूँ तारिक न्याजी साहब के साथ और यहाँ पर हम बैठे हैं कुछ देखने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का टाइटल है जी फ्रूट मिक्सर है। फ्रूट मिक्सर क्यों लेकर आ गए? कलरफुल हेल्दी फ्रूट मिक्स्ड रेसिपी। लो जी, कुकिंग का चैनल खोलिए तारिक न्याजी साहब ने। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। समर हेल्थ फ्रूट रेसिपी स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जी स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखते हैं जी क्या कमाल हो गया। ஆரோக்கியமான பல குவியல் செம்மையா கலக்கிறோம், பயங்கரமா ருசிக்கிறோம். இன்னைக்கு ஒரு புட்டு எல்லாரும் வாங்க. ஆல்வேஸ் வெல்கம்ஸ் யூ. அண்ணாச்சி பழத்தை பாரு, ஆப்பிள் இங்க போடு. டிராகன் பழமா அந்த டிராகன் மாமரத்துல எடுத்து போடுறாரு. இந்த செட்ல கிடக்கு. ஆரஞ்சு அண்ணாச்சி கீழ போடாதடா. தூக்கு பழத்தை தூக்கு. சொல்றேன் இந்த கீரை எடு. பிறகு நல்லா சுத்தமான ஆமா ஆரோக்கியமான தட்டுக்குள்ள தட்டால பாத்திருக்கியா? பாரு அடிக்க மாதிரி இத பூரா பிரிச்சு எடுக்கணுமே. பிடிங்கி போட்டுருவோமா? நான் ஒரு அலசிட்டு தாண்டா வைக்கிறேன். எல்லாம் மோட்டர் பாதாம் பிசினே சப்த விதை முன்னறிவு கூழ். அது என்னது? ஒரு ஆரஞ்சு தந்திருக்கேன், சாப்பிட்டு இந்த வந்து தள்ளிடுறேன். பேர் என்ன? நல்ல கடையா பார்த்து வாங்கிடுறா. நம்ம மாதிரியே பெரிய போகையில பின்னாடி கைய விட்டுனே அந்த வாழ்க்கை ஒரு வட்டம். புராண கதைலாம் வந்துகிட்டே இருக்குடா. சைக்கிள்ல போமா பைக்ல போமா யோசிப்பேன். இல்ல படம் சூப்பரா இருக்கும். வா சொல்லிட்டு நீங்க நிறைய ஐட்டம் வச்சிருக்கீங்க. 2 திராட்சை பழமும் உரிச்சு இப்ப கிளி பழத்துக்கு வந்துட்டீங்க. என்ன சிரிக்கிறேன்? நீங்க தானே தமிழ் சொல்லுவார். அவனை வெயில எல்லாம் வைக்க கூடாது. இதா கண்டுபிடிச்சேன்.
கொய்யா பழம் நறுக்கணும்னு வாசனை ஊற்றியாது என்னடா விளையாடி என்னடி சொல்ற இந்த மாம்பழம் அத்திப்பழம் முடிச்சு கலாபத்தில் நிறுத்தினா அது மட்டும் கண்டா எல்லாம் நம்ம முடிச்சு விடுங்க அதுக்கப்புறம் இந்த விதையெல்லாம் போய் போட்டோம்னா தான் போடுறாரு. பலாப்பழம் மட்டும் குமாரு நீ சொல்லிட்டு போயிருவே. எல்லாத்துக்கும் போதும் தானே ஆப்பிளே நறுக்கணும் ஆப்பிளே நடுவில் கொட்டி விட்டா நறுக்கணும் அன்னாசி பழம் தாறு மாறு தக்காளி சோறு கிண்டு கிண்டு நறுக்கணும் பேரிக்கா பப்பாளி கொண்டாடா நறுக்கணும் பப்பாளி நறுக்கணும் கொய்யா பழம் மாதுளை முத்துக்கள் கிவி பழம் நறுக்கின ரெட் டிராகன் நறுக்கண மாம்பழம் பன்னீர் திராட்சை உரிச்சு எடுத்த சப்போட்டா நறுக்கின தர்பூசணி பழம் நறுக்கண கீரணை பழம் தோல் உரிச்ச அத்தி பழம் கமகமனு பலா பழம் புளிப்பு பழம் நல்லா இருக்கு ஆடுறா பசுமையான பச்சை திராட்சை போட்டுடு அடுத்து கொண்டாடா உரிச்சு எடுத்த ஆரஞ்சு சொல 21 ஐட்டம் சேருது பழத்துல சேர்க்கிறோம்ல எல்லாத்தையும் கண்ணாடியில பற்றாம கீழே விடு அப்ப கிண்டுவாயா திறமசாலி பொய்யா வாக்குன்றான் இல்ல கண்ணாடியில பாக்குற மாதிரி தெரியுது. ஆமா கண்ணாடி இருக்கே தெரியல. மெதுவாக பண்ண பாரு ரெட் டிராகன் தான் ஃபுல்லா கலர் மிக்ஸ் ஆகுது அப்படியே. ஊற வச்ச பாதாம் பிசின் ஊற வச்ச சப்சா விதை கீழே இறங்குது பாரு அப்படியே. இயற்கையான மழை தேனே புளிஞ்சிட்டு ராட்டி எனக்கு கொடுத்துருனே. இதுல தண்ணி கொண்டு வாடா தேன் உள்ள போ. தேனை பாரியா நல்ல சலனை இறங்குறேன் அப்படி எல்லாத்தையும் வச்சுட்டேன். சட்டி எனக்கு கொடுத்துரு. இருக்கிறோம்டா இங்க லைன்ல நிக்கிறோம்டா. அடுத்தது போறதா அடுத்த ராட்டி எனக்கு தேனு பூரா கீழே இறங்கிடுச்சா? சாப்பிட்றதுக்கு பவுல் எடுத்து சாப்பிடுவோம். அதான் பிசனு தேன் எல்லாம் சேர்ந்துருச்சுல்ல. பவுல் ஸ்பூனு வச்சு ஊருக்கு சாப்பிட்டுருவோமா? அப்படி தேன் கலரோட எடுத்து ஊற்றுங்க. அதான் நமக்கு உண்டான குண்டா. அது நமக்கு கொஞ்சம் சேர்த்து வரலி வை. இன்னும் அள்ளி போடுங்க. எல்லாருக்கும் கூட ஒரே வச்சா அடி பிரிச்சிருவேங்கிறியா? 18 பழம் டாம்பி.
நெய் வந்திருக்கு, சப்சா வந்திருக்கு, ஆஹா பிசி பழம்னா இப்படி வந்திருக்கு. சாப்பிடணும். வேற லெவல் டேஸ்ட்ண்ணே. கேமரா எடுத்துட்டு சாப்பிட்டு பாரு இப்படி தெரியும். அத்திப்பழம் கலவை எனக்கு பிடிச்ச பலாப்பழம். எல்லாமே கிடக்குது. பாதாம் பிசின் எல்லா பழமும் சேர்ந்து இந்த ஒவ்வொரு பழமுமே ஒவ்வொரு டேஸ்ட்டை கொடுக்கும். அது எல்லாமே சத்தான பழம் தான். இன்னைக்கு 18 வகையான பழத்தை நறுக்கி போட்டு அதை குளிர்ச்சிக்கு சப்சா விதை பாதாம் பிசின் சேர்த்துட்டு தேன் மலை தேன் சேர்த்ததுக்கு அதுக்கும் வேற லெவல் டேஸ்டாக இருக்கு. எல்லாரும் தேனாமிர்தம் கேள்விப்பட்டிருப்போம், சாப்பிட்டுப்போமா. நீங்களும் இதே மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்க. இதாங்க தேனாமிர்தம். நம்மனாலையும் தேனாமிர்தம் சாப்பிட முடியும். வேற லெவல் டேஸ்ட். நான் சுவை சொல்லவே தேவையில்லை, நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க. அருமையா இருக்கு. பழங்கள் மரம் சாப்பிடுக்குமா, ஸ்பூன் இருக்கு. जी जनाब, कैसा लगा? बहुत आला। कभी जिंदगी में ऐसा फ्रूट चाट देखा? देखे भाई, हमने ना फ्रूट चाट तो खाई है, मगर ये जो इन्होंने इसके अंदर मज़ीद एडिशन की है ना, उसमें गोंद डाली है पका के उन्होंने। इसके अंदर जो है वो तुखमलंगा, शहद, हाँ, और शहद डाला है। सबसे ज़्यादा अमेजिंग यहाँ से ना मैं आपको एक बात बताऊँ, बताऊँ, मेरे पास एक डायरी नहीं है। अगर मेरे पास एक डायरी पड़ी रहती है और मैं जब रिएक्शन देता तो मैं बहुत सारी चीज़ें लिखता, मुझे यहाँ से इतने आइडिया मिल चुके हैं। फॉर एग्जांपल, बहुत अच्छी सोसाइटी में, बहुत अच्छे मॉल में अगर ये सारी चीज़ों की पिक्चर लगी हो और आप किसी को ये फ्रूट चाट बना के खिलाएं तो आप बताएं कितना चलने वाला है। अरे भाई, यहाँ वो चीज़ें उधम यहाँ वो चीज़ें मुझे देखने को मिलती हैं जो हमारे पाकिस्तान कराची जैसे शहर में नहीं है। आप किस फ्रूट चाट में शहद डाल के दे रहे हो? कहीं भी नहीं है भाई, कहीं भी नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये फ्रूट चाट तो आज तक किसी यूट्यूब इस चैनल तरह- पर देखी नहीं। अब आपको मैं एक और बात बताऊं, मैं कुछ चीज़ें, 2-4 चीज़ें जो मेरे जहन में मेमोरी में है। हमारे यहाँ पे इंडिया में एक ऐसी ट्रेनें भी हैं, एक नहीं कई हैं, जो सिर्फ टूरिस्ट के लिए हैं, जो चलती हैं, लाखों रुपये उनका टिकट है, जो चलती हैं, आपको मुख्तलिफ शहरों की सैर करवाती हैं, उस शहर में रुकती हैं, फिर आपको शहर में गाड़ियाँ लेके जाती हैं, फिर आप वापस ट्रेन में आते हो। उस ट्रेन के अंदर क्या क्या है? क्या क्या है? पूरा घर है, अच्छा। बेडरूम है, स्पा है, वो क्या कहते हैं अपना रेस्टोरेंट है, सब कुछ उसी के अंदर है, फ्री ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट रिएक्शन ठीक हो उसी गया, पर देंगे। ठीक हो गया। महाराजा एक्सप्रेस, पैलेस ऑन व्हील, इस तरह की उनकी ट्रेनों के नाम है। वो हमारे यहाँ कहीं नहीं है। हमारे यहाँ कोई ऐसी ट्रेन नहीं है जो टूरिस्ट के लिए चलती हो। और अंग्रेज़ आते हैं, बाकायदा उनको हार पहनाए जाते हैं, ट्रेन के अंदर कारपेट से चल के ट्रेन के अंदर इंटर होते हैं। वो वाह। ढोलों के तरीके से उनका इस्तकबाल होता है, वाह। उनको हार पहनाए जाते हैं, उनको कल्चर वाले गिफ्ट दिए जाते हैं, लाखों रुपये उनके टिकट होते हैं। खैर बहरहाल, एक ऐसी ट्रेन भी इंडिया में शायद अब चल रही है, नहीं चली, आप लोग ज़रूर बताइएगा, जो सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल है। वो ट्रेन हर दफ़ा एक गांव में जाती है, वहाँ पर एक हॉस्पिटल लगता है और लोग आके इलाज करवाते हैं। ट्रेन जाती है गांव में, जो गांव वाले फिर वहाँ पर बाकायदा पूरा छोटे मोटे ऑपरेशन तक की सहूलत है उस ट्रेन के अंदर, पूरा हॉस्पिटल जाता है गांव में। हमारे क्या बात है। अच्छा, ये जो सारा फ्रूट ले जाकर इन्होंने जहाँ पर खिलाया है, ये क्या ये साउथ इंडिया का एक बहुत बड़ा चैनल है। अच्छा। और अनाथ आश्रम, ये ओल्ड हाउस होगा, ओल्ड हाउस है ये सबसे अच्छी बात लगती है। अच्छा, फिर इसके बाद ये अपना नंबर भी देते हैं। ये आइडिया भी मेरे जहन में है कि यहाँ पर अगर कुछ लोग ऐसे मिले मुझे तो मैं उनके साथ मिल के ये काम भी करूँ, ये वाला चैनल भी करूँ जिसमें लोग डोनेट करें। हफ्ते में एक वीडियो भी बहुत है ये, हफ्ते में एक वीडियो अगर ये बने, बल्क में क्वांटिटी में बनेगा, मैं तो इतना हैरान होता हूँ। मैं अपनी कौम की मतलब हम लोग बैल हैं। हम लोग बैल किसको कहते हैं पता है? जो किसी इंडिया में बैल की मिसाल है तो बेकार। उसकी वजह है कि वहाँ गाय की से तो दूध लिया जाता है, बैल उनके लिए बेकार होता है। तो मुझे, हम पाकिस्तानी कौम इसलिए मुझे बैल लगते हैं। हमारे कितने सोशल इदारे हैं जो खिलाते हैं, वो इसी तरह बल्क में बना के वीडियो बना के खिलाएं, मतलब बनाने की वीडियो बना ले, सर्टिफिकेशन वीडियोस बने और वो बेशक लंगर खाना खिलाएं, कुछ भी करें, लाखों व्यूज़ आने हैं, हज़ारों व्यू। अब देखें ये क्या है,
इतना बड़ा चैनल, इसके जरा सब्सक्राइबर चेक करें, सही कह रहे हैं, चेक करें, बस इंशाल्लाह ताला चेक तो करते हैं। करें। ये रहे नीचे ये रे 29.3 मिलियन सब्सक्राइबर करते हैं इसके ऊपर 29 काम। मिलियन। आई एक्सेप्ट योर आइडिया एंड आई विल डू इट विद योर। क्या क्या करेगा एक बंदा। बस तो दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।